السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 82 کا پارٹ 4 ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد کی بلند پہاڑیوں کے درمیان بنا وہ کلب جہاں صرف دولت اور طاقت والے ہی قدم رکھ سکتے تھے۔ شیشے کی چھت کے نیچے لٹکے سیاہ سنہری فانوس رات میں چلملا رہی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی فضا میں تیز پرفیومز کی خوشبو، ہلکی دھند اور بلیک گولڈ تھیم کی لائٹس ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ فرش پر ماربل کی چمک اور ہر طرف ہائی ہیلز کی چاپ ایسی تھی جیسے ساز بج رہی ہوں۔ کلب کی دیواریں مخملی سیاہ پردے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ زرِ خانزادہ اس پارٹی میں خاص طور پر انوائٹڈ تھا۔ اسے اپنی اس پارٹی میں شرکت کے لیے بہت بھاری چیک دیا گیا تھا۔ یہاں اور بھی سیلیبریٹیز انوائٹڈ تھے۔ سب کے چہروں پر اس وقت ماسک تھے۔ مہمانوں اور سیلیبریٹیز کے چہرے پر مکمل طور پر خوبصورت ماسک سے ڈھکے ہوئے تھے۔ پارٹی کے اختتام پر سیلیبریٹیز نے ماسک اتارنا تھا۔ زرِ خانزادہ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے سیاہ ہی ماسک آنکھوں پر لگایا ہوا تھا۔ کلب کے ڈانس فلور پر پارٹنرز چینجنگ ڈانس بھی ہو رہا تھا۔ ان کے بیچ سیلیبریٹیز خاص طور پر ڈانس فلور پر موجود تھے۔ ڈانس کرتے ہوئے زرِ خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں سرخی کی آمیزش شامل ہوئی تھی۔ وہ ایک نازک سی لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالے ڈانس کر رہا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر بھی ماسک تھا، مگر زرِ خانزادہ کے سرسبز نگاہوں کا مرکز اپنے ساتھ ڈانس کرتے ایک کپل پر تھا۔ وہ لڑکا جس لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا، اس لڑکی کے بالوں کی رنگت زنیشا کے بالوں کی رنگت جیسا تھا۔ زرِ خانزادہ کو اپنی رگوں میں اترتا خون جانے کیوں ابلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لڑکی سرخ رنگ کی فش میکسی میں ملبوس تھی۔ فل سلیوز میں سر سے پیر تک وہ نازک سی میکسی اس لڑکی کو مکمل طور پر ڈھانپے ہوئے تھی، مگر پھر بھی وہ لڑکی کا خوبصورت جسم ریویل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر سرخ رنگ کا خوبصورت ماسک تھا۔ زرِ خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں اب جیسے خون ٹپکنے لگا تھا۔ زرِ خانزادہ کی پوری حساسیت اب اس لڑکی کی طرف تھی جو اپنے پارٹنرز کے کندھوں پر اپنے نازک ہاتھ جمائے ڈانس کر رہی تھی۔ اس کی طرف بالکل متوجہ نہ تھی۔ یکدم اس لڑکے کے ہاتھ بھی اس لڑکی کی نازک کمر پر آن ٹھہرا تھا۔ زرِ خانزادہ کے شریانوں میں دوڑتا خون بری طرح سے کھولنے لگا تھا۔ وہ چینجنگ پارٹنرز سے پہلے ہی اپنے حصار میں ڈانس کرتی لڑکی کو آزاد کرتے۔ اس لڑکی کی باہوں سے اس لڑکی کو چیل کی طرح جھپٹتے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ دوسرا لڑکا زرِ خانزادہ کے ایکٹ سے تحیر زدہ ہوا تھا۔ زرِ کو گھورتے ہوئے وہ دوسری لڑکی کے ساتھ ڈانس کرنے لگا۔ کلب میں انگلش گانا گونج رہا تھا جس پر سب کپلز ڈانس کر رہے تھے۔ زرِ خانزادہ اپنی خون اتری آنکھیں اپنی باہوں میں قید لڑکی پر ڈالی تھی۔ شرابی آنکھوں میں دیکھتے زرِ خانزادہ کے پورے وجود میں آگ بھڑکی تھی، تو اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا۔ وہ زنیشا شاہ ہی تھی۔ زرِ خانزادہ کی کن پٹی کی پھڑکتی رگیں بری طرح پھڑکنے لگی تھیں۔ مساموں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ پیروں سے تپش نکلتے دماغ تک پہنچ رہی تھی۔ زرِ کا رگوں سے ابھرا ہاتھ اس کی نازک کمر میں بے رحمی سے پیوست ہونے لگا تھا۔ اور زرِ خانزادہ کے کندھوں پر اپنے نازک ہاتھ جمائے مسکراتی چیلنج کرتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرِ خانزادہ کی آنکھوں سے مزید شرارے پھوٹے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ دانت پر دانت جمائے پھررایا، جیسے میرے بیلووڈ ہسبینڈ کی ہوئی ہمت یہاں آنے کی۔ وہ اطمینان سے مسکرائی تھی۔ گال پر گڑھا پڑا تھا۔ زرِ خانزادہ کا پورا بدن دہلتا ایندھن بنا تھا۔ وہ زنیشا شاہ کی کمر کو اپنی مٹھیوں میں بے دردی سے بھرنے لگا۔ زنیشا شاہ اپنی سسکاری دانتوں تلے دباتے مسکراتی جا رہی تھی۔ وہ اتنی بے دردی سے اس کی کمر کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھا۔ زنیشا شاہ کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی، مگر وہ مسکرا رہی تھی۔ کہ تم نے آج کیا ہے بس اس کی وہ سزا دوں گا، تم یاد رکھو گے زینی جان۔ اس کے کان میں جھکے اس میں لٹکتے آویزے میں جھولتے موتی کو دانتوں میں دبائے کھینچنے لگا۔ زنیشا نے درد سے سسکاری بھری تھی۔ پارٹنر تیزی سے گھومنے لگے تھے۔ صرف وہی دونوں مجسم سے کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ پارٹنر چینجنگ مومنٹ پر اسی لڑکے نے زنیشا کی طرف پھر سے ہاتھ بڑھایا تھا۔ زرِ خانزادہ اس کی کلائی پکڑتے ایک ہی جست میں مروڑ چکا تھا۔ کڑک کی آواز کے ساتھ لڑکے کی چیخیں پورے ہال میں گونجنے لگی۔ ہال کی تمام لائٹس آن ہوئی تھی۔ وہ لڑکا اپنی ٹوٹی کلائی جکڑے چیخیں مار رہا تھا۔ کسی بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا، ممی ڈیڈی بوائے، اور زرِ اس کی کلائی مروڑتے توڑ چکا تھا۔ وہ الگ شگاف چیخیں مار رہا تھا۔ زنیشا شاہ پہلی مرتبہ گھبرائی تھی، مگر اپنے معطل ہوتے حواس پر قابو پاتے وہ زرِ خانزادہ کی آنکھوں میں سٹل آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ دو گارڈز اس لڑکے کی طرف تیزی سے بڑھے تھے۔ زرِ خانزادہ اسی لمحے زنیشا کی کلائی جکڑے تیز قدموں سے وہ
क्लब अबूर करने लगी। अगर इसका मास्क उतर जाता तो इसे बहुत नुकसान पहुंचता। जनीशा भी मीडिया और खबरों की जीनत बनती। इसकी अपनी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता। वो लब खींचे जनीशा के कलाई चकड़े इसे इस हॉल के चमकते ग्लास फ्लोर को अबूर कर रहा था। जनीशा शाख पर इसकी गिरफ्त में अपनी कलाई टूटती महसूस हो रही थी। वो हाई हील के साथ इसके भारी कदमों का साथ देते तकरीबन भाग रही थी। क्लब में आए हर इंसान की निगाहें इन दोनों पर थी। मोबाइल कैमरों से इनकी तस्वीर क्लिक हो रही थी, वीडियोस बन रही थी और ड्रोन तक इनके सरों पर प्रवास करते इन्हें एयर एंगल से कैप्चर कर रहा था। जरे की कनपटी की वेन्स फूल रही थी। वो सर्दो सपाट निगाहों से आगे बढ़ रहा था। जैक जो एडवांस में भारी चेक वो जो एडवांस में ले चुका था, वो अब इसे वापस करना था। वो फिर भी न्यूज़ की सुर्खियों में होगा। वो जानता था जब बाकी सेलिब्रिटीज में सिर्फ वही नहीं होगा, यकीनन नकाब के पीछे इसे ही बताया जाएगा। जरीक खानजादा का दिमाग मुख्तलिफ सोचों की अमाज का बना हुआ था। वो बेतरतीब सांसें लेते जनीशा की गलाई जकड़े इस क्लब से जितनी तेजी से निकल सकता था निकल आया था। शोफर से गाड़ी मंगवाने की बजाय वो खुद ही पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ रहा था। जनीशा धक धक करते दिल के साथ इसके साथ खींचती तकरीबन भाग रही थी। दिल अब कानों में बजने लगा था। वो बेहद गुस्से में था। जनीशा इसकी चौड़ी पुश्त देखते फक रंगत लिए इसके कदमों का बमुश्किल साथ दे रही थी। जरीक वैसे साथ भागती हुई चीख थी। वो हाई हील्स के साथ मजीद नहीं भाग सकती थी। वो रुकते हुए इसकी तरफ पलटा था। जनीशा स्याह नकाब में छुपी इसकी आंखों में खून उतरे देखते मुजम्मद हुई थी। जरी खानजादा इस पर बर्फीली निगाह डाले आगे तेजी से बढ़ने लगा। अब की बार कदमों में मजीद रवानी आई थी। वो गिरती पड़ती ही अब इसके कदमों का साथ दे रही थी। हाई हील में वो भागना बहुत मुश्किल था। आसपास से गुजरते लोग रुक रुक कर इन्हें देख रहे थे। वो जिस तरह के लिबास में थी कोई भी पार्किंग लॉट की तरफ इस तरह नहीं आता था। गाड़ियां क्लब के हॉल के सामने रुकती थी। हर किसी की निगाहें जनीशा पर महसूस करते जरीक खानजादा की गर्दन की रगें अब भी फूलने लगी थी। वो गुस्से से खोलते अपनी शर्ट के ऊपरी दो बटन खोलते अपनी टाई की नॉट ढीली कर गया था। खानजादा खून रगों में बुरी तरह खोल रहा था। जनीशा पर इसने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, मगर बगैर किसी दुपट्टे के वो इस तरह के बेहुदा ड्रेस पे कैसे बाहर आ सकती थी। इतनी आज़ादी भी नहीं दे रही थी। जनीशा की कमर पर लिपटा हाथ इसके सोचने समझने की सलाहियत मफकूद कर रहा था। शरियानों में खून ऐसे बॉयल हो रहा था, लगता था वो शरियानों को चीरता बाहर आ जाएगा। आह! जनीशा चीखते हुए लड़खड़ाई थी। इससे पहले कि वो मुंह के बल गिरती वो इसे बेदर्दी से खींच चुका था। जनीशा शाह फूलती सांसों के साथ इसके साथ खींचती गई। वो गहरे सांस लेते अब अपनी कलाई पर लिपटा इसका रगों से उभरता हाथ हटाने की सही करने लगी। जरीक खानज़ादा ऐसे रिएक्ट करेगा ये तो इससे इसकी सोच में न था। वो इतना गुस्से का तेज है ये इसे अंदाजा न था। गाड़ी के पास आते जरीक खानज़ादा रिमोट की से गाड़ी का लॉक खोलते जनीशा को अगली सीट पर बेदर्दी से धकेल गया था। अपना कोट उतार कर पिछली सीट पर उछालते वो ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट कर गया था। गाड़ी इस्लामाबाद टोल प्लाजा कब से अबूर कर गई थी। गाड़ी तेजी से कलाम की जानिब रवां थी। सरसब्ज पहाड़ों और घने जंगलों के इतराफ में गाड़ी तेजी से गुजर रही थी। जरीक खानज़ादा के हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे थे। वो अपनी आंखें विंड स्क्रीन पर जमाए हुए था। गाड़ी में गंभीर खामोशी छाई हुई थी। सनीशा लब काटते विंड स्क्रीन से बाहर देख रही थी। वो पिछले 2 घंटों से खामोशी से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में सिर्फ इसकी भारी सांसें गूंज रही थी। हाथ स्टीयरिंग पर मजबूती से जमे थे। इसके हाथों और कलाइयों पर उभरी हुई रगों को किन अखियों से देखते वो अपने निचले लब को मजीद बेदर्दी से काटने लगी थी। ज़रिक ज़नीशा ने नरमी से इसकी कलाई पर अपना मोमी हाथ रखा था जो पिछले 2 घंटों से बारूद का गोला बना हुआ था। वो जैसे फट पड़ा था। ज़नीशा का हाथ बेदर्दी से झुटकते हुए ज़रिक खानज़ादा ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा थी। गाड़ी बुरी तरह उछलती हुई सड़क पर फिसली थी। ज़नीशा शाह ने बमुश्किल अपना सर डैशबोर्ड से टकराने से बचाया था, मगर लबों से चीख बुलंद होने से रोक ना पाई थी। इससे पहले गाड़ी सामने दरख्त के साथ टकराती ज़रिक खानज़ादा गाड़ी की हैंड ब्रेक खींच चुका था। जनीशा गहरे सांस लेते फटी फटी आंखों से बाहर देख रही थी। 1 मिनट की और देर होती गाड़ी दरख्त से बुरी तरह टकरा जाती और वो लोग यकीनन विंड स्क्रीन के शीशे से बाहर होते। ये कर रहे हो, पागल हो गए? क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो? जनीशा हलक के बल चिल्लाई थी। जरीक खानजादा जो अपनी कनपटी उंगली से मसलते हुए खुद पर जब्त कर रहा था वो जनीशा के चिल्लाने पर गम गुस्से से पागल हुआ था। शट अप यू ब्लडी वुमन। वो स्टीयरिंग पर हाथ मारते जितना चीख सकता था इतना चीखा था। जनीशा इसकी चीख पर गुपचुप मेहर बेलब हुई थी।
गाड़ी भी जैसे इसकी चीख से लरसने लगी थी। ज़रीक ने सीट से टेक लगाया, अपनी टाई गले में से खींचकर उतारी और गहरे सांस लेते ज़ब्त की हदों पर था। जनीशा के लब आहिस्तगी से चंबिश में ढले। वो इसे ठीक नहीं लगा था। इसी लम्हे ज़रीक खानज़ादा अपनी सीट से झुकते हुए जनीशा के चेहरे के इतने करीब आया कि जनीशा का दम सांसों में अटकने लगा। डू यू वॉन्ट मी टू शो यू हाउ डेंजरस आई कैन गेट जनीशा? मैं तुम्हें बताऊं जनीशा, मैं तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता हूँ? ज़रीक के लफ्ज़ों में सर्द महरी नहीं थी। वो तपिश थी जो चमड़ी को जला दे। सनीशा घबराते हुए दूसरी तरफ खिसकी तो ज़रीक का मजबूत हाथ इसके बाजू पर पड़ा था। इसकी उंगलियां सनीशा के बाजू में गड़ने लगी थी। क्या पहना है तुमने? इस तरह के लिबास में तुमने हवेली से निकलने की हिम्मत कैसे की? वो इसके गले में हाथ डालते इसकी मैक्सी आगे से चाक कर गया था। ज़रीक जनीशा से फटी फटी निगाहों से देखते अपने सीने पर हाथ रख गई थी। हटाओ यहाँ से हाथ, बेशरम औरत। उसके हाथ अब इसके सीने से हटा गया था। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ज़रीक? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जनीशा अपने लिबास की हालत देखते बेयकीन थी। आंखों से सील रवां बहने लगा था। तुम मेरे साथ वुमेन कार्ड खेल रही हो। यू ब्लडी, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो। इतना सब कुछ करके भी वो लफ्ज चबाते इसके बालों को बेदर्दी से जकड़ गया। ज़रीक, जनीशा दर्द से सिसकी थी। छोड़ो मुझे ज़रीक, मैं कोई विक्टिम कार्ड या वुमेन कार्ड नहीं खेल रही। तुम कैसे बीच रास्ते में यूं ही अपनी बीवी को बेलिबास कर सकते हो? सनिशा इसकी मजबूत गिरफ्त से अपने बाल छुड़वाते हलकान हुई। वो सीट पर इस पर मुकम्मल तौर पर झुका हुआ था। जनीशा इसके चौड़े सीने के नीचे जैसे दबी हुई थी। मैक्सी कंधों से जमीन पोस हो रही थी। जनीशा के बात पर सरीक खानजादा की सांसें धोखने की माने चलने लगी थी। लबों पर इस्तेजाइयां मुस्कुराहट उभ रही थी। तुम्हें लगता है ये लिबास तुम्हारे जिस्म पर होते हुए भी मौजूद था? वो भड़कते हुए इसके बालों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। लीफ में सरिक, वो हलक के बल चिल्लाई थी। सरीक खानजादा की गिरफ्त इसके बालों पर मजीद मजबूत हुई थी। छोड़ो मुझे, मैं यहाँ की औरत की तरह नहीं हूँ जो तुम मर्दों से पिटो और बदले में आंसू बहाती रहो। मुझे हाथ लगाया, हाथ तोड़ दूंगी। वो गुस्से से गुर्राए। इसके लफ्जों पर सरीक खानजादा अपने हवास खोते मजीद पागल हुआ था। खून में शरारे पूछने लगे, तुम यहाँ की औरत की तरह हो भी नहीं सकती। बेशरम, बदतहजीब, चीप, थर्ड क्लास औरत हो तुम। वही एक लफ्ज चबाते गुर्राए। तो तुम मुझे गाली दे रहे हो? सनीशा के लफ्ज हलक में घुटे थे। हाँ, क्योंकि तुम इसी लायक हो। वो सीधे होते स्टीयरिंग पर हाथ मारते तैश वो आलन से चीखा था। जनीशा बेयकीनी से ऐसे भीगी निगाहों से देख रही थी। तुम्हें लगता है मेरा लिबास फाड़कर तुम मुझे खामोश करा लोगे? मैं तुम्हारी कठपुतली नहीं हूँ ज़रे। तुम्हारा हाथ लगाया तो कसम खाकर कहती हूँ, तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। वो फूट फूट कर रोते हुए से इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। जरी खानजादा को कैसे ट्रैक पर लाना है ये जनीशा कबीर खान जानती थी। जरी क्लब भींचे स्टीयरिंग को जकड़े दांत पर दांत जमाए हुए था। जनीशा शाह बुरी तरह सिसकारियां भर रही थी। गाड़ी में इसकी सिसकारियां गूंज रही थी। डोंट यू डेयर प्ले दैट मैन ऑफ ऑनर आफ्टर humiliating me like this. If I am your wife, not your drama property. मुझे यूं रिस्वा करने के बाद इज्जतदार बनने का नाटक मत करना। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी जायदाद नहीं। वो मुसलसल रोते ही जा रही थी। लफ्ज टूट टूट कर अदा कर रही थी। ऑलवेज द सेम bloody victim card, just like every other woman. वो बड़बड़ाते हुए सीट से टेक लगाए आंखें मूंद गया था। जनीशा की सिसकारियां इसे कनपटी पर हथौड़े की मानंद लगने लगी थी। जनीशा की कमर पर लिपटा हाथ इसके अंदर दहकता तंदूर चलाए हुए था। क्यों आई तुम आज इस होलिये में? और किसके साथ आई हो? सरीक खानजादा ने सीधे होते अपनी पिछली गर्दन सहलाई थी। आवाज कदरे धीमी थी। अब वो मुसलसल अपना गुस्सा जब्त कर रहा था। अपने ब्लडी क्रिपी हस्बैंड को देखने की आई थी। वो यहाँ किसके साथ मुंह मारने आया है? सरीक खानजादा को नर्म पड़ते देखते जनीशा ने अपनी टोन बदली। ओके, आई अंडरस्टैंड। जरीक खानजादा ने सबसे बोलते एंगेशन में चाबी घुमाई। क्या अंडरस्टैंड कर चुके हो? जनीशा ने गर्दन मोड़े से देखा। तुम चीप थर्ड क्लास वुमेन नहीं, सिर्फ नफसियाती औरत हो। वह कदरी धीमी आवाज में बोलते गाड़ी का दरवाजा खोलते उतरा था। जनीशा इसके लफ्जों पर हद तक से सुर्ख होते इसे गाड़ी से उतरते देख रही थी। जरिक ने डिग्गी खोलते वहां पड़े एक पैकेट से मर्दाना शॉल निकाली थी। डिग्गी बंद करते वो जनीशा की तरफ बढ़ा, जो गर्दन मोड़े से ही देख रही थी। इसे अपनी तरफ आता देखते वो रुख मोड़ चुकी थी। जरिक खानजादा ने इसकी तरफ का दरवाजा खोलते इसे कलाई से खींचकर बाहर निकाला था। सर्दी की लहर पर जनीशा ने झुरझुरी ली। बर्फीली हवाओं से चेहरा सुर्ख हुआ था। वो लोग पहाड़ों की तरफ इतराफ में एक सुनसान जगह पर खड़े थे। इसके गिर्द स्याह रंग की मर्दाना शॉल शॉल दे गया था। जनीशा ने इसकी आंखों में सुर्खी को बगौर देखा था।
ज़रीक इसके गिर्द स्याह रंग की मर्दाना शॉल दे गया था। जनीशा ने इसकी आंखों की सुर्खी को बगौर देखा था। वो इसे गाड़ी से लगाते बेहद नरमी से इसकी थोड़ी को जकड़ गया। जनीशा ने गुस्से से इसे देखा था, वो नर्म पड़ रहा था, वो अब इतनी आसानी से न मानने वाली थी। वो इसे शिकवा किना निगाहों से देखते शर्मिंदा करने लगी थी। मुझसे निकाह करने से पहले तुम जान चुकी थी कि मैं किस फितरत का मालिक हूँ। वो बेहद नरमी से पूछ रहा था। सनीशा इसे तहीर से देखते इसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी कि किस फितरत की मालिक हूँ। पोजेसिव, अपनी हरकत पर अपना हक, अपनी औरत पर अपना हक जमाने वाला। वो इसकी थोड़ी अभी भी नरमी से जकड़े हुए था, मगर नीली आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। जनीशा ने इसकी बात पर इस बात पे सर हिलाया। इसकी आंखों की सुर्खी पर दिल कानों में बजने लगा। वो बेतरतीब बालों और बेतरतीब हुलिये में बेहद हैंडसम लग रहा था। जनीशा की हार्ट बीट मिस हुई थी। वो इसी लम्हे अपनी निगाहें चुरा गई थी। तुम्हें लगता है मेरे लिए छोटी बात है तुम इस तरह के लिबास में किसी गैर मर्द के साथ डांस करो? सरीक खानजादा ने मुस्कुराते हुए बेहद मुलायमत से पूछा। जनीशा इसकी मुस्कुराहट पर उलझन का शिकार होते सरनफी में हिला गई थी। फिर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये लिबास पहनकर किसी मर्द की बाहों में जाने की? इसने चिल्लाते हुए पूरी कुव्वत से इसकी इतराफ में गाड़ी पर मुक्का मारा था। जनीशा बुरी तरह लड़सा उठी थी। मैं मैं न्यूयॉर्क जैसी सिटी में पली बड़ी, तुम्हें भी पता होना चाहिए, मेरे लिए ये आम बात है। जनीशा शाह ने अपनी लड़साहट पर काबू पाते कहा। वो अपनी ढिठाई पर कायम थे। जरिक इसकी बात पर मुंह पर हाथ फेरते जब्त से पीछे हुआ। वो जितना जब्त कर सकता था कर रहा था। बर्फीली हवाओं से दोनों के वजूद चल रहे थे। पासपोर्ट है तुम्हारे पास? जरिक खानजादा ने इसके करीब आते पूछा। मेरे पर्स में। इसके क्रॉस बारी इसके क्रॉस बाडी मोतियों वाले सुर्ख रंग के पर्स में इसका पासपोर्ट था, जो इसने आते ही वैसे ही साथ रखा था। ग्रेट, चलो फिर। जरीक खानजादा ने इसे बाजू नरमी से जकड़े इसे गाड़ी में बिठाया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट की। इसने गाड़ी का रुख वापस इस्लामाबाद की तरफ मोड़ लिया था। जनीशा इसे उलझन भरी निगाहों से देख रही थी। वो जितनी तेजी से गाड़ी दौड़ाते लाया था, अब इतनी तेजी से गाड़ी वापस दौड़ाए ले जा रहा था। स्टीयरिंग पर दोनों हाथ मजबूती से जकड़े सर्दो सपाट चेहरा लिए वो बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा था। जनीशा शाह की गर्दन में गिलती उभरते मातूम हो रही थी। आखिर वो कहाँ जा रहा था? वो तब भींचे बेहद सुर्ख चेहरे के साथ ड्राइव कर रहा था। जनीशा अब की बार कुछ पूछने की जसारत न कर सकी थी। वो खामोशी से विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगी। बलाकर 2 घंटे की ड्राइव के बाद वो फिर से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे। जनीशा की सांसें उलझ रही थी। गाड़ी को एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता देखकर जनीशा शाह ने बेयकीनी से जरीक खानजादा को देखा। गाड़ी एयरपोर्ट की मुख्तलिफ सिक्योरिटी मराहिल से गुजरती अंदर दाखिल हुई। वो गाड़ी रोके गहरे सांस लेते विंड स्क्रीन से बाहर देखने लगा। चेहरा सर्द सपाट हर किस्म के जज्बात से आ रही था। जाओ। जरीक की बात पर जनीशा ने गर्दन मोड़े से बेयकीनी से देखा। वो विंड स्क्रीन से बाहर देख रहा था। जरीक, जनीशा की आवाज़ भीगी थी। जनीशा आसमान शाह हो ना तुम? तो जाओ अपने बाप के पास। मेरे पास क्या कर रही हो तुम? वो इसे आसमान से ज़मीन पर पटक चुका था। जरीक खानजादा की इस्तज़ाहिया निगाहें इसकी मुतग़य्यर होती रंगत पर जमी थी। जनीशा खानजादी होते भूल गई थी मुकाबिल ज़रिक खानज़ादा है। इसका वार करने का अंदाज़ मुख्तलिफ था, मगर वो भी ज़ावियार खानज़ादा का भाई। दोनों की रगों में भी दौड़ता खून एक जैसा ही था। तुम ये कैसे कह सकते हो? जनीशा की आवाज़ भर आ गई। जैसे तुम वो बेहुदा लिबास पहनकर गैर मर्द की बाहों में झूल सकती हो। सर्द बर्फीले चुभते हुए लहजे में बोलते बोलते ने गाड़ी से उतर गया था। जनीशा की तरफ बढ़ते से कलाई से खींचते बाहर निकाला। वो सर्ट लिबास पर इसकी गर्म शाल में पैरों तक ढकी हुई थी। बाल शानों और कमर पर लहरा रहे थे। तेज हवा की वजह से कुछ लटें आरस पे छू रही थी। सर्ट लिपस्टिक से सजे होंठ बुरी तरह कपकपा रहे थे। शराबी आंखों में ठहरी शबनम अब आरस पर फिसल रही थी। वो इसके करीब होते सजाहिया निगाहों से इसके आंसू देख रहा था। मैं चली जाऊंगी, लड़खड़ाती जुबान से इसे धमकी दी। जाओ, देर किस बात की है? वो इसके बदन की लड़साहट पर निगाहें गाड़े इससे दूर होते हाथ से एयरपोर्ट के अहाते की तरफ इशारा कर गया। जनीशा गहरे सांस लेते नम निगाहों से इसे देख रही थी। जरीक खानजादा की गहरी निगाहें इसके खूबसूरत नकोश का गहराई से तवाफ कर रही थी। जो इसने आज किया इसकी माफ़ी हरगिज ना थी। वह इस औरत पर किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सजा तो बनती रही। मुकाबल के सांसें घुटते देख के अंदाजा हो रहा था तेज तीर एग्जैक्ट निशाने पर लगा है। बस के एक पर बमुश्किल ही सांस ले रही थी। आ रहा हूँ मैं, टीना। फोन बजने पर जरिक खानजादा ने फोन पैंट की पॉकेट में से निकालते कान से लगाया। जरिक के लबों से किसी औरत का नाम सुनते वो पागल हुई थी। जरिक खानजादा ने जनीशा के तासरात पकड़ देखते कॉल डिस्कनेक्ट करते फोन पैंट की पॉकेट में डाला।
तो किस से बात कर रहे थे? जनीशा का पूरा वजूद जलते भांबड़ों की लपेट में आया था। वो आगे को होती इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ गई थी। इसी औरत का फोन जिसके साथ में आज रात मुंह मारने वाला था, इसके हाथ अपने गिरेबान से जकड़ते इसे गाड़ी के दरवाजे पर पटकते हुए ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते बैठा। जनीशा ने जब्त की इंतहा पर अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े गहरे सांस लिए। अगले लम्हे वो गाड़ी का दरवाजा खोलते वापस गाड़ी में बैठी थी। ज़रीफ खानज़ादा ने इस पर कहर बार निगाह डाली थी। आइंदा ऐसी हरकत की कसम खाता हूँ, तुम्हें प्राइवेटली जेट करवा कर भी न्यूयॉर्क छोड़कर आना पड़ा, छोड़कर आऊंगा। और तुम्हारी जो मेरे बारे में घटिया सोच है वो करके दिखाऊंगा। वो धमकी आमेज लहजे में गुर्राते हुए गाड़ी स्टार्ट करते गाड़ी वापस मुड़ गया था। आयश स्याह फिटिंग वाली गरम शर्ट और ट्राउजर में मलबूस शावर लेते बाहर निकली थी। जावियार खानजादा से लम्हे कमरे में दाखिल हुआ था। वो रात से अब कमरे में आया था। इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। रात आयश को कमरे में छोड़कर इसने मर्दाने में रात गुजारी थी। आयश पर जितना शदीद गुस्सा था और इसके पास रुकता तो यकीनन इसके बखी उधेड़ने से कम पर राज ही ना हरगिज ना होता। गुस्सा तो अभी भी नहीं उतरा था। वो भाग रही थी। अगर रोमियो टाइटन ना होते वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो सकती थी। इसके इस इसके किसी भी दुश्मन के हाथ लग सकती थी, या फिर किसी भी गलीस मर्द के जो रात की तारीकी में आयश की जवानी और खूबसूरती पर बिल्कुल रहम न खा था। जावियार खानजादा के फ़ोन में अभी तक लावा उबल रहा था। वो अभी तक स्याह ट्राउज़र और स्याह टी शर्ट पर जैकेट में मलबूस था। एक पल एक पल इसने रात सुलगते हुए गुजारी थी। जैकेट जैकेट तक उतारना वो भूल गया था। आयश जावियार खानजादा को देखते अपनी शाल बेड से उठाए अच्छी तरह खुद पर लपेट गई। वो गुस्से से ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ते अपने मुंह पर हाथ फेरने लगा। मिरर में इसके अक्स पर नजर पड़ी थी। वो चादर अच्छी तरह सर पर जमाए नजरें झुकाए हुए थी। जिस्म की लड़जाहट बता रही थी वो इससे खौफ खा रही है। जाओ यहाँ से, जावियार ने गुस्से से कहते अपनी जैकेट उतारकर बेड पर उछाली। नाजुक वजूद पर इतना गुस्सा था, चमड़ी उधेड़ने को दिल चाह रहा था, मगर वो कल रात से खुद पर जब्त कर रहा था। जब से इसके दिमाग की रगें फटने के करीब थी। आयश जावियार के हुक्म पर तेजी से कमरे से निकल गई थी। वो बेड पर गिरते ऊंधे मुंह होते तकिए को अपनी बाहों में दबोच गया। रात एक पल नहीं सोया था। वो अपने खोलते खून पर काबू पाते सोने की कोशिश करने लगा। आयश मलिक के बारे में सोचते इसने गुस्से से तकिए को अपने शिकंजे में बेदर्दी से दबोचा। इस वक्त आयश मलिक इसकी बाहों में होती वो इसे भी ऐसे दबोच डालता। जितना वो खुद पर जब्त कर रहा था, इतना भड़क रहा था। जावियार खानजादा ने झंझलाते हुए एश साइड टेबल से उठाते जमीन पर दे मारी थी। भारी एश का कांच जमीन पर बिखरा था और सीधे होते झंझलाते हुए सिगरेट केस से सिगरेट जलाए लबों में दबा गया। इस जैसे इंसान से अपना गुस्सा जब्त करना इंतहा का मुश्किल था। वो सिगरेट के धुएं से अपना जिगर जलाने लगा। आयश मलिक ऐसे कैसे कर सकती है? वो अपनी पेशानी मसलते हुए गुस्से से बल खाते मुसलसल सोच रहा था। शरियानों में दौड़ता खून गर्म गर्म खून आयश मलिक ठंडा कर सकती थी। इसके दिमाग की सोचें हमेशा की तरह आयश मलिक के खूबसूरत जिस्म में ही उलझी थी। वो वायरलेस फोन का रिसीवर उठाए किचन में रखे फोन का नंबर मिलाते कान से लगा गया। मुसलसल बेल पर फोन नहीं उठाया गया था। वो गुस्से से रिसीवर जमीन पर पटक गया था। आयश किचन में दाखिल होते बेयकीन हुई थी। वो किचन के बीचों बीच खड़ी बेयकीनी से डबडबाई आंखों से गुलराना को देख रही थी। आयश के कदम मुजस्सम थे। नीली आंखों से झरना बह रहा था। गुलराना, वो भागते हुए इसके गले से लगी। गुलराना भी शिद्दत से इससे लिपटी थी। गुलराना, तुम यहाँ कैसे? वो इससे अलग होते बेयकीनी से पूछ रही थी। गुलराना भी रोते हुए आयश मलिक को देख रही थी। दोनों को अपने अपने दुख रुला रहे थे, वरना दोनों के बीच रिश्ता तो कुछ न था। खान साहब ने गुरबत को खास तौर पर फ़ोन किया था कि हमको हवेली छोड़ जाए। गुरबत तो खान साहब का हुक्म सुनते बहुत ही झुंझलाया था, मगर खान साहब का हुक्म वो कैसे टाल सकता था? देखो, हम तुम्हारा सामने, गुलराना खुशी से बता रही है थी। इसे घर से निकलने का बहाना मिल गया था। वह कैसे न खुश होती। गुरबत इसके साथ बहुत अच्छा था, मगर वो ही अभी तक अपने बाप की उम्र के शौहर को कबूल न कर पाई थी। वो करीब आता था तो सांसें घुटने लगती थी। सावियार ने तुम्हें बुलाया? वो बेकीन होते पूछ रही थी। हाँ, खान साहब ने। हमको यकीन नहीं आ रहा था। आयश बीवी, ये बैठे बिठाए खान साहब को क्या हो गया? पता नहीं इस जालिम इंसान को हम पर कैसे रहम आ गया। तुम पर या मुझ पर रहम? आयश आईब्रोज का आए मध्यम भीगे लहजे में सरापा सवाल थी। क्या ये भी अच्छे कपड़ों की तरह जावियार खानजादा की तरफ से अपने किए का तावान था? एक
ایک مداوا تھا۔ وہ اپنی سوچ پر کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ظالم سافیار خانزادہ کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کوئی تاوان کوئی جسٹیفیکیشن معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے لیے اب کچھ نہ تھا۔ ہم پر نہیں خود پر رحم کیا ہوگا۔ اسے پتہ چل گیا ہوگا ہم غربت کی قربت سہتے اسے دن رات بد دعائیں دیتا ہے۔ اب کم بد دعائیں ملے گا۔ خواہش کی طرف جھکتے سرگوشی کر کے عائش کی بھیگی کھلکھلاہٹ بڑھی تھی۔ وہ دوسرے لمحے وہ روتے ہوئے گل رانا کے ساتھ چپکی۔ پرانے زخموں میں جیسے خون رسنے لگا۔ کمر پر پڑے داغ اسے جلانے لگے۔ کچن کے دروازے میں کھڑے سافیار خانزادہ کے چہرے پر ناگواری کی لہر آئی تھی۔ اسے ملازمہ کے ساتھ چپکے دیکھ اس کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا تھا۔ ایک تو گل رانا کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، دوسرا اس کے گلے سے لگے رو رہی تھی۔ عائش سافیار خانزادہ کی بھاری آواز پر عائش بدحواس ہوتے گل رانا سے دور ہوئی تھی۔ زاویار کو اس کا ملازمہ کے ساتھ کلوز ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی بختورہ کے بعد وہ ہر ملازمہ سے خار کھاتا تھا۔ گل رانا اپنی بڑی سی چادر درست کرتے رخ موڑ گئی تھی۔ عائش بھی اپنی چادر اچھی طرح سر پر جمائے نگاہیں چکا کے کمرے میں آؤ وہ حکم دیتے چلا گیا تھا۔ عائش نے گہرا سانس بھرتے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ عائش اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ پیر پر چپتے کانچ پر وہ سسکی تھی۔ ذرے جتنی کانچ کی کرچی چبھی تھی وہ تیزی سے پیچھے ہوئی تھی۔ سافیار خانزادہ اس کی سسکاری پر بے چین ہوتے اس کی طرف بڑھتے اسی لمحے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ وہ ننگے پیر تھی۔ کتنی بار کہا ہے پیروں میں جوتا پہنا کرو۔ میں اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سرد مہری سے بولا۔ عائش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس کی خاموشی پر جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس نے لبوں سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا۔ منہ میں پتھر ڈال رکھے ہیں یا ایلفی چپکا رکھی ہے؟ عائش ملک اس کے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ عائش اب کی بار اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے نگاہیں چکا گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس کی نیلی آنکھوں میں اپنے لیے بیزاری اور نفرت دیکھے۔ جانتی تھی وہ بیزاری اور نفرت دیکھتے پاگل ہو جائے گا، پھر سزا بستر پر دے گا۔ وہ عائش کو بیڈ پر بٹھائے اس کے قدموں کی طرف بیٹھا، اس کے پاؤں کے تلوے دیکھنے لگا جہاں کوئی زخم نہیں تھا، کانچ نہیں چبھا تھا۔ میں ڈر گئی تھی صرف، وہ مدھم آواز میں بولتے اپنے پاؤں کھینچ گئی۔ زبان ہے ابھی بھی گریٹ۔ زاویار خانزادہ اس کے قریب لیٹ دے اسے بازوں سے جکڑے اپنے اوپر گرا کیا تھا۔ عائش ملک کے سنہری بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے اور اس کے بالوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ عائش کو چادر اتارتے وہ بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ عائش کا نازک بدن زاویار کے چوڑے سینے پر تھا اور اس کے بال اپنے چہرے سے ہٹائے اس کی تھوڑی کو جکڑے اس کا چہرہ اوپر کو اٹھا گیا تھا۔ عائش نے اپنی نگاہیں پھیری تھی۔ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ زاویار خانزادہ نے بھاری لہجے میں سوال کیا۔ عائش کی خاموشی پر وہ رخ پلٹتے اس پر حاوی ہوا۔ عائش کی گردن پر جھکتے وہ اسی لمحے ناگواری سے اس سے دور ہوا۔ کچن میں گل رانا کے ساتھ چپکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے سستے پرفیوم کی مہک تم سے آ رہی ہے۔ وہ اس سے بولتے تکیے پر سر رکھ گیا۔ اس عورت کے جسم پر وہ مہنگا سینٹ برداشت نہیں کرتا تھا۔ اسے عائش ملک کی خوشبو بھاتی تھی۔ میں شاور لے لیتی ہوں، عائش کہتے بیڈ سے اتری۔ کچھ پلوں کے لیے ہی صحیح۔ اسے اس سے رہائی چاہیے تھی۔ اسے بھی زاویار کی خوشبو چبھتی تھی، سانسیں دہک جاتی تھی۔ اس سے پہلے عائش بیڈ سے اترتی وہ اسے کلائی سے جکڑے پھر سے اپنی باہوں میں قید کر گیا تھا۔ مجھے بالکل پسند نہیں تمہارا کسی ملازمہ کے ساتھ چپکنا عائش ملک۔ گل رانا ادھر آ گئی ہے، اس سے دور رہو۔ وہ بھاری لہجے میں بولتے اسے اپنے سینے میں سختی سے قید کر گیا۔ وہ اسے اپنے نیچے کرتے اس پر حاوی ہوا۔ عائش کی نیلی آنکھیں زاویار کی مخمور نگاہوں میں گڑی تھی۔ آنکھوں میں وہ خمار بن کر اتری ہوئی تھی۔ جو تم نے رات کیا اس کی سزا عبرتناک ہے عائش ملک، رحم کھا رہا ہوں، مگر آئندہ ایسی ویسی حرکت کی بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ وہ یکدم اس کا جبڑا بے حد سختی سے دبوچ گیا۔ عائش اس کی سختی پر کراہ کر رہ گئی تھی۔ جبڑا اس کی گرفت میں ٹوٹنے لگا۔ زاویار خانزادہ اسے سرخ لمبی نگاہوں سے گھورتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے زپ نیچے کھسکا گیا تھا۔ شرٹ کندھوں سے ریموو کرتے وہ جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے دانتوں سے مہرے لگانے لگا۔ عائش اپنی سسکیاں دانتوں تلے دبائے ہوئی تھی۔ وہ اس کے دل کے مقام پر جھکتے وہاں بے رحمی دکھا گیا تھا۔ عائش کے لبوں سے سسکاری نکلنے پر وہ وہاں مزید اپنا جنون دکھانے لگا۔ عائش ملک آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کے لوگ کو دانتوں میں بے رحمی سے دبا گیا تھا۔ عائش درد سے پھر سے کراہ اٹھی تھی۔ وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ عائش نے اٹھ کر بیٹھتے شرٹ اپنے کندھوں سے اوپر کرتے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے موبائل فون میں اب گم تھا۔
जा के कुछ खाओ फिर मेरे पास आना। आयश ने रात का खाना खाया था, वो इस पर पहली बार रहम खा गया था। दूसरा, वो उसकी गुर्बत में बिल्कुल भी बर्फ की डली बनी हुई थी, जो ज़ावियार से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आयश अपनी शर्ट की जिप बंद करते, बेड से उठते, चादर अच्छी तरह खुद पर ओढ़ते दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ी। ज़ावियार खानज़ादा ने इसके कदमों की इजलत पर उसे कहर बार निगाहों से देखा था। इस कमरे से इसे जाने की कितनी जल्दी थी, वो देख सकता था। जूता पहनो। ज़ावियार खानज़ादा के हुक्म पर आयश ने बेड के पास पड़ा हुआ जूता पहना। वो लम्हों में कमरे से छू मंतर हुई थी। ज़ावियार खानज़ादा बेड से टेक लगाए आंखें मूंदे आयश की नीली आंखों में ठहरी नफरत को याद करते सुलगा। इसके बदन की ठंडक पर इसके अंदर उतरने लगी। आयश मलिक, रहना तुम्हें मेरे पास ही है। अब चाहे नफरत करो या फिर मुझसे इश्क। वो हंसते हुए सिगरेट सुलगाते लबों में दबा गया था। आयश कमरे से निकलती तेज तेज कदमों से लाउंज में आई थी कि ज़रिक खानज़ादा के चौड़े सीने से टकरा गई थी। और जब आया था गुस्से से लाउंज में टहल रहा था, जनीशा ऊपर कमरे में थी। वो शर्ट के अध खुले बटनों स्याह पैंट में मलबूस अपने गुस्से पर काबू पा रहा था। वो मर्दाने की तरफ बढ़ने लगा था कि आयश इसके साथ टकरा गया था। वो पहले ही काफी उजलत में थी। ज़रिक खानज़ादा से टकराने पर इसकी चादर का कोना इसके अपने पैर में आया था। आयश के कदम बुरी तरह लड़खड़ाए थे। ज़रिक खानज़ादा इसी लम्हे से शानों से जकड़े संभाला दे गया था। चादर सर से फिसलती इसके कदमों में बोस कदमों में बोस हुई थी। आयश इसे सब गुस्से से दूर झटकती झपकते हुए अपनी चादर उठाने लगी। आयश की अधखुली जिप से नजर आती कमर पर गहरा निशान देखते ज़रिक खानज़ादा बेयकीन हुआ था। और निशान किसी बेदर्द जर्द का था। वो लम्हों में पहचान गया था। आयश चादर अच्छी तरह सर पर ओढ़ते किचन की तरफ बढ़ी थी। ज़रिक खानज़ादा तेजी से इसकी तरफ बढ़ते इसे कलाई से जकड़े स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया था। ज़रिक, आयश इसके साथ खिंचती दबी आवाज में चीख रही थी। अगर ज़ावियार खानज़ादा ये देख लेता तो ज़रिक खानज़ादा को जान से मारता ही, साथ में इसे भी बेल्ट से पीट डालता। आयश की हर सोच आजकल पीटने पर ही टूटती थी। वो इसके साथ खींचती ज़ावियार खानज़ादा के खौफ से चीख भी ना सकी थी। ज़रिक खानज़ादा इसे लिए स्टडी रूम में दाखिल होते हुए दरवाज़ा अंदर से लॉक कर गया था। ज़रिक, वो हलक के बल हंसियानी होते चिल्लाई थी। काम डाउन आयश, मैं तुम्हें बात करने के लिए भी यहाँ लाया हूँ। वो धीरे से बोलते इसके करीब होते इसकी नीली आंखों में देखने लगा। दोनों हाथ वो इसके इतराफ में दरवाजे पर रखे हुए था। बकवास बंद करो अपनी। ज़ावियार ने देख लिया तो जान से मार डालेगा तुम्हें। तुम्हें भी और मुझे भी। आयश इसे गुस्से से देखते गुर्राई। हम कुछ गलत नहीं कर रहे आयश। वो लब खींचे बोला। ओह शट अप यू डबल फेस्ड हाइपोक्राइट, आई स्वेयर आई किल यू विद माय ओन हैंड्स। वो इसके सीने पर हाथ मारते इसे दूर धकेलते गुस्से से पागल होती गुर्राई थी। काम डाउन, जस्ट टेल मी, तुम्हें लाला ने मारा है? ज़रिक खानज़ादा के सवाल पर आयश हंसने लगी। वो इसे देखते पागलों की तरह हंस रही थी। वो जब से इसे देख रहा था, तुम सच में कितने मासूम हो मिस्टर ज़रिक, जो कल तक मुझे यहाँ के तौर इतवार बता रहा था कि मैं खान की बीवी हूँ। इतना आसान नहीं है मेरा अब यहाँ से निकलना। मेरा निकाह हो गया। वो तंसिया हंसते हुए बोल रही थी। इतना कुछ तुम्हें पता है, ये नहीं पता कि मैं बनी में हूँ। तुम्हारे लाला के थप्पड़ सहना मामूल की बात है। बेल्ट से मारा है इसने मुझे। हो सकता है अगली बार गोली मार दे मुझे। सबरीना मलिक से भी कभी मुलाकात हुई तो इसे मेरी खबर का पता जरूर बता देना। हो सकता है इस बेरहम दोगली औरत के चंद आंसू ही गिर जाएं। वो भीगे लहजे में बोलते अपनी चादर अच्छी तरह सर पर जमा गई। वो निशान बेल्ट का है। ज़रिक खानज़ादा ने बेयकीनी से पूछा। किस निशान का पूछ रहे हो? जिस्म पर लगे या जो रूह पर लगे वो दिखाओ। आयश गुस्से से बोलते रुख पलटते दरवाजे का लॉक खोलने लगे। और हाँ, आइंदा ये 2 नंबर की एक्टिंग का दिखावा मेरे सामने मत करना। जाओ यूरोपीय मगरबी लड़कियों की मदद करो। इन्हें तुम्हारी मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। तुम्हारे मिलियन फॉलोअर्स मज़ीद बढ़ जाएंगे। आयश ज़रिक खानज़ादा पर तंजिया निगाह डालते दरवाज़ा खोलते निकल गई थी। इतना कुछ तुम्हें पता है, ये नहीं पता है कि मैं वनी में हूँ। तुम्हारे लाला के थप्पड़ सहना मामूल की बात है। बेल्ट से मारा है इसने मुझे। हो सकता है अगली बार गोली मार दे मुझे। आयश के लफ्ज़ समातों में गूंजते गूंजने पर इसने गलती से पूरी कुव्वत से मुक्का दरवाजे पर मारा था। ज़ावियार खानज़ादा आयश को इतनी बेदर्दी से मार सकता वो बेयकीन था। ज़ावियार खानज़ादा से ये उम्मीद ना थी कि वो गहरे सांस लेते पागल होते स्टडी रूम के एक एक चीज़ को ठोकर मार रहा था। वो अगर पहले स्टेप ले लेता तो आयश मलिक को यूं जानवरों की तरह न मारा जाता। कैसे इसका लाला एक औरत को मार सकता था?
وہ بھی اپنی بیوی کو۔ اس نے چیختے ہوئے اسٹڈی روم کے وسط میں پڑی ٹیبل کو پاؤں سے ٹھوکر مارتی تھی۔ ٹیبل الٹ کر دور جا گری تھی۔ زنیشا شاہ اس کے وجود کو بھڑکائے ہوئے تھی۔ اب عائش ملک جیسے سارا الزام اس پر دھرم کر چکی تھی۔ وہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ اسٹڈی روم کی ایک ایک چیز میں وہ زمین پر گراتے اپنے حواس کھو رہا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولز، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔